Hello children. So today is welcome to day 13 online spoken class, and children, this topic is for class 4th to 11th students, right? So what is group discussion? So group discussion is when two or more people sit and discuss on a particular given topic. Okay? And what are the advantages? Why do we use group discussion? Why it is important to learn about this art? So children, group discussion, it is used in interviews. It could be a level in interviews. After interviewing a person for like single person, then the next level can be group discussion. Or it can be used in higher studies. So higher studies, when you go for higher studies, college, etc., or for more higher, then this group discussion can be useful. In jobs, as I told you, in interviews, then it could be in jobs, in society, when you are sitting with your friends, your relatives, your family, there also it is useful, and also it develops your personality. So it is also a key to develop your personality, children. And what is judged in that? ग्रुप डिस्कशन में क्या जज किया जाता है? सो इट जजेस आवर बैलेंस ऑफ आवर एडजस्टमेंट विद अदर स्पीकर्स, दैट हाउ डू वी behave when we speak to other people. It is also that quality of a person is shown, and also with that the adjustment it also bring out our stand in various topic. Our stand means what is our opinion. When we take a stand, जब हम अपनी कोई बात पे like we put up our things, views, our stand, our points, that we should not allow only adjustment in our life, but we should have our stand too, right children? So to start with group discussion, we follow the below given points. So children, how are you going to prepare for this? That I am telling you. Actually, we will also send you some examples of group discussion. Soon you will get that also. But with this video, you will learn how you can practice group discussion at home with your family members. So first point is introduction. Whenever a group is sitting and you are given a topic, so what happens, children? Each member introduces himself or herself, right? Each member of the group has to introduce. In that introduction, it depends for what topic and where and who are the speakers in the group. It depends on that. Suppose you are discussing something at home with relatives, you need not introduce yourself because everybody knows you. And suppose you have gone for GD in some interview, then of course you will be introducing yourselves. So it depends what type of introduction and how you are going to start. Okay. Now see, it's always very good to address, to take initiative. So when we start our topic, we should address others like friends, my friend, my group mate, and suppose you are doing it within your family, then it will be their name. You will know their name. But when you are doing a group discussion with strangers whom you do not know, or you cannot learn their names. Suppose 5 people are there and 5 people have introduced themselves, but you will not know their name. You cannot memorize their name so quickly. So children, how do we address? We say friends, my friend, my group mate. जहाँ पर हमारे known लोग हैं, वहाँ पे हम नाम ले सकते हैं. Unknown है तो हम ये वाले words use कर सकते हैं. ठीक है? और एक की पॉइंट है ग्रुप डिस्कशन का, दैट वी शुड नॉट यूज एनी हार्श वर्ड्स. हम ये अपने लाइफ में भी डे टू डे लाइफ में भी हम इसको यूज करेंगे.
कि हम हार्श वर्ड्स जब भी बात करें तो ना बोलें. राइट चिल्ड्रन? सो दिस इज another plus point. This is not only for GD, this is for our whole life. कि हमने no, wrong, I don't agree, me, my, I, ये सारे words strongly नहीं बोलने हैं. अगर हम किसी के साथ इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं unnecessarily, then these become harsh. I and my cannot be harsh. अगर मैं अपने आप को बता रही हूँ I'm going to drink water, then of course I will use water. I. And if I say this is my fault or this is my room, तो naturally मुझे my use करना पड़ेगा, me भी use करना पड़ेगा अगर give it to me मैं कहती हूँ. But जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम harshly इन वर्ड्स को ना बोलें. I want this, तब हम ना बोलें. सपोज आपके लिए डिनर है तो आप डिनर के लिए मदर ने पूछा आप क्या खाना चाहते हो, I want to eat this, तो this becomes little bit harsh. Mother cannot cook separate dishes for 4 to 5 members. तो फिर हम we करते हैं या us करते हैं या ours करते हैं. Ours, we, us, it always becomes polite और ये शो करता है कि you care for others also. आपकी caring nature दिखती है. So no, wrong, I don't agree, ये वाले words हम नहीं use करते children. These are harsh. और देखिए कभी भी हमारे बोल से, हमारे वर्ड से कभी भी कोई भी हर्ट नहीं होना चाहिए. दिस इज ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ. सो माई DPS स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट नो चाइल्ड ऑफ DPS टू बी हार्श. मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे इस तरह के वर्ड्स यूज कर देते हैं. क्लास में भी आप करते हैं, आपकी फाइट हो जाती है. सो अपने आप को ही ज़्यादा नहीं करते बिकॉज वन अपीयर्स टू बी सेल्फिश और दूसरे लोग फिर उसको पसंद नहीं करते. अगर हम ज़्यादा ये करते हैं तो लगता है इनको तो सिर्फ अपनी परवाह है. तो लाइफ में कभी भी हमें ऐसा नहीं शो करना है दैट वी आर सेल्फ सेंटर्ड. हमें सिर्फ अपनी परवाह है, हम सिर्फ अपने आप को बताएंगे. नो, वी शुड टेक एवरीवन टुगेदर. तो ये आपको आदत बचपन से ही सीखनी है. राइट चिल्ड्रन? सो टेकिंग अप नेक्स्ट पॉइंट, टेक इनिशिएटिव. But don't repeat same lines or topics name, rather explain or introduce the meaning of the topic. अगर ग्रुप डिस्कशन होता है तो जो भी पहले बोलता है वो बहुत इम्प्रेसिव लगता है. So you can take initiative, you can start. बहुत अच्छी बात है, you must do that. तो आप अगर स्टार्ट करते हैं या बीच में भी बोल रहे हैं तो you should not repeat the same lines. कुछ भी बोलने के लिए कुछ भी नहीं बोलना है. You cannot repeat it again and again. So speak less but speak meaningful. So initiative अगर आप लेते हैं तो टॉपिक का नाम लेने की बजाय don't, मैंने लिखा है don't repeat same lines मत बोलो. और टॉपिक्स नेम, टॉपिक का नाम भी बार बार नहीं बोलना है. rather क्या करना है उसकी बजाय explain और introduce द मीनिंग ऑफ द टॉपिक. हमेशा फर्स्ट लाइन आप सोचते हो एकदम से माइंड में नहीं आएगा. जैसे GD में आपको एक टॉपिक मिला तो आपके एकदम से माइंड में उस टॉपिक के बारे में नहीं भी आ सकता. बहुत जल्दी हम नहीं सोच पाते, बहुत कोई न्यू थिंग है. सो इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप फटक से जैसे ही आपको टॉपिक मिला है फट से आप उसके बारे में इंट्रोड्यूस कर दो कि वो है क्या चीज़ या उसका मतलब क्या है. दिस इज ऑलवेज वेरी गुड बिकॉज टॉपिक्स आर जनरल टॉपिक्स होते हैं. तो आप उसकी जगह अगर इंट्रोड्यूस कर दोगे उसको, सो दैट इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट इन GD. आप फट से उसको इंट्रोड्यूस करिए एंड यू विल बी द फर्स्ट स्पीकर. एवरीबडी विल स्टार्ट लुकिंग एट यू एंड यू आर गोइंग टू इम्प्रेस. फिफ्थ पॉइंट है इन GD, फर्स्ट स्पीकर ऑलवेज इम्प्रेस, नेवर बी द लास्ट स्पीकर. अब 4 लोग बोल रहे हैं बेटा एंड 3 people दे स्पीक. आप सोचते हैं ठीक है हम बाद में ही बात करते हैं, लास्ट में मैं बोलता हूँ. तो देखो यू विल ऑलवेज गेट लेस मार्क्स और आप किसी का भी ध्यान नहीं खींच पाओगे. इन GD फर्स्ट स्पीकर ऑलवेज इम्प्रेस, नेवर बी द लास्ट. सेकेंड हो सकते हो, चलो किसी ने बोलना शुरू कर दिया, यू शुड नॉट कट देयर पॉइंट्स, पर फिर भी कोशिश करनी है कि हम लास्ट स्पीकर ना हो. राइट माई चिल्ड्रन? सिक्स्थ पॉइंट, व्हेन यू डिसएग्री
अगर आप किसी से डिसएग्री करते हैं, एंड दिस इज फॉर जनरल लाइफ ऑल्सो, नॉट ओनली फॉर ग्रुप डिस्कशन, अगर आप किसी से डिसएग्री करते हो, आपको किसी की बात पसंद नहीं आ रही, आपको किसी का पॉइंट पसंद नहीं आ रहा, नेवर से यू आर रॉन्ग, नो आई डोंट एग्री, नो दिस इज रॉन्ग, यू जस्ट शट अप, no you are telling me too much. You cannot say all these lines and sentences to others, whether they are junior to you or senior to you. तो हम कौन सी लाइंस बोलते हैं, सारे ध्यान देंगे. इट्स वेरी राइट बट आई फील, राइट कह दो उसको, जो भी आपसे बात कर रहा है तो बिल्कुल तो गलत नहीं बोल रहा होगा. ये तो अगर डेलिबरेटली कोई गलत बहुत बोल रहा है तो बात अलग है. अदरवाइज वेन एवर वी आर स्पीकिंग कैजुअली, हम ऐसे ही बात कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत तो कोई नहीं बोलेगा. तो आप हमेशा कह सकते हो इट्स वेरी राइट बट आई फील के बाद आप अपनी बात रख दीजिए कि मुझे ऐसा लगता है. आप भी सही कह रहे हो लेकिन मुझे ऐसा लगता है. ठीक है ना. जैसे कहें कि चलो मूवी देखने चलनी है, फैमिली में डिस्कस हुआ, या चलो आउटिंग के लिए जाना है, तो आप कह सकते हो इट्स वेरी राइट but I feel we should go on a picnic, or I feel we should stay at home because I am very tired, but I feel that we should do this. ऐसे करके अपने जब पॉइंट रखना है तो you should use such sentences. You should start your statement with positivity. और सेकंड तरीका है ओके, इट्स ओके बट आई फील दिस. इट्स ओके, ठीक है, ये भी सही है लेकिन मैं ये सोचता हूँ. आप अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी ऐसे ही बात करके देखिए, एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपकी सोच में आ जाएगा. योर पर्सनालिटी विल लुक वेरी इंप्रेसिव एंड यू विल लुक वेरी एजुकेटेड एंड यू विल लुक वेरी हम्बल, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये आपकी नेचर में आ जाएगी. सो यू आर गोइंग टू शाइन. फिर आप और ऐसे कह सकते हैं आई एग्री विद यू बट आई वुड लाइक टू ऐड दिस. मैं आपकी बात मानता हूँ लेकिन मैं भी ये कहना चाहूँगा. समझ गए बेटा. सो लर्न दीज लाइन्स, ऑलवेज स्टार्ट योर कन्वर्जेशन लाइक दिस, यू विल डेफिनेटली अपीयर स्मार्ट. सेवंथ पॉइंट देखिए, इन द एंड कंक्लूड द टॉपिक वेल. और कंक्लूजन के लिए क्या चाहिए? सो लिसन एंड रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स वाइजली. अगर आपको कंक्लूड करना है, अंत में जो हम उसका निचोड़ बताते हैं या उसको हम कंक्लूड करते हैं, वी टेल ऑल व्हाट वी हैव स्पोकन, उसको समराइज करते हैं जब हम. सो लिसन एंड रिमेंबर पॉइंट्स वाइजली. आप ढंग से पॉइंट्स को सुनो, उनको थोड़ा याद भी रखो, यानी लिसनिंग कैपेबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए. इफ यू डोंट लिसन टू अदर्स वी कैन नेवर बिकम ग्रेट. अ लिसनर इज ऑलवेज अ ग्रेट अचीवर. जो सुनता है दूसरों की बात वो बहुत अच्छा अचीवर बनता है. सो चिल्ड्रन ऑलवेज लिसन टू वॉट योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, वॉट एवर पीपल से टू यू, क्योंकि जब हम दूसरों की सुनेंगे तो हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है. राइट. सो बी अ वेरी गुड लिसनर ऑल्सो. और जब आप सुनेंगे तो आपको पॉइंट्स भी याद रहेंगे. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ ग्रुप डिस्कशन में यू विल नॉट स्पीक. You will definitely speak. That is what we are having group discussion for. लेकिन अननेसेसरी बोलना, ज़्यादा बोलना, जोर से बोलना, तो हो सकता है छोटी मोटी जगह आप शाइन कर जाओ, बट लॉन्ग रेस, इन लॉन्ग रेस you will not shine. Right? So these are the good points. Now coming to next point, use words like, अब ये words use करो, we, us, yes, you are right, well said, but, इस तरह के words use करो. यूज वर्ड्स ओनली व्हेन रियली रिक्वायर्ड. जब लेकिन ऐसी कोई लाइन बता रहे हो तब आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हो. आई, मी, माई, शट अप, नो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब कोई आपको बिल्कुल ही गलत, सपोज समबडी इज अब्यूजिंग यू, देन ऑल्सो यू कैन मूव अवे. आप दूर जा सकते हैं. लेकिन अगर आप दूर नहीं जा सकते एंड इट इज़ बिटवीन फ्रेंड्स और चलो ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स में है, सो शटअप कैन बी एन ऑप्शन ओनली व्हेन रिक्वायर्ड. ऐसा भी नहीं है कोई आपको अब्यूज कर रहा है एंड यू आर लिसनिंग, यू आर बीइंग पोलाइट, वो भी ज़रूरी नहीं है. या आई एम सो एंड सो अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो डेफिनेटली आई तो बोलोगे ही, मी भी बोलोगे, नो भी बोलोगे, बट वेयर इट इज़ रियली रिक्वायर्ड, रियली रिक्वायर्ड होगा तो ही ये वर्ड्स यूज करेंगे. व्हेन ओनली रियली रिक्वायर्ड. ठीक है बेटा. नेक्स्ट देखो, देयर आर 4 टॉपिक्स. देयर आर 4 टॉपिक्स फॉर यू टू डू. अब आपको ये काम मिलता है कि 4 टॉपिक्स मैं दे रही हूँ. दीज टॉपिक्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड रेलेवेंट ऑल्सो.
तो ये आप लोग टॉपिक्स कोई भी 2 चूज करेंगे, ठीक है, और इनको 2 दिन तक पोस्ट करना है, एक को टुमारो और एक को डे आफ्टर टुमारो। 2 दिन आपने अपने वीडियो पोस्ट करने हैं ग्रुप डिस्कशन के, और ग्रुप डिस्कशन में आप 3 तो कम से कम रखिए, नहीं तो ज़्यादा भी रखिए। नाउ टेल योर पेरेंट्स टू सिट विद यू, और योर अंकल आंटी, और योर फ्रेंड्स, और योर सिबलिंग्स, और योर नेबर्स, किसी को भी लेके 2 टॉपिक है, पहले ही उसके ऊपर लाइन्स लिखिए, खूब सोचिए, बिकॉज दिस इज यू आर गोइंग टू डू इट फर्स्ट टाइम। लाइक 4th, 5th, 6th के बच्चे तो वैसे ही बहुत छोटे हैं। सो चिल्ड्रन, जस्ट सी, चूज एनी 2 टॉपिक्स, 4 में से 2 ले लीजिए। एक दिन एक का वीडियो सेंड करना है अपने ग्रुप इंचार्ज को, और एक दिन एक का। सो आई एम गिविंग यू वर्क फॉर अदर 2 days ऑल्सो, दैट इज टुमारो एंड डे आफ्टर। तो मैंने जो टॉपिक्स लिए हैं वो है, इज ऑनलाइन स्टडी बेटर दैन ऑफलाइन स्टडी। तो दिस इफ यू विल सेंड मी, इट विल हेल्प मी ऑल्सो, मुझे भी थोड़ा समझ में आएगा कि ऑनलाइन में क्या अच्छा था, ऑफलाइन में क्या अच्छा होता है, क्या आपने मिस किया। तो बड़ा रेलेवेंट सा टॉपिक है, तो इस पे ज़रूर पूरा परिवार आप लोग डिस्कस करके इस पे ग्रुप डिस्कशन का डालिए, ठीक है। अब ग्रुप डिस्कशन डालेंगे कैसे, एक टेबल के चारों तरफ बैठ जाइए और एक मोबाइल साइड में खड़ा करके, एंड यू कैन रिकॉर्ड, और जस्ट 2-3 मिनट्स का ही रखिए, मेन पॉइंट्स ही फटाफट बोलिए तो अच्छा लगेगा, बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम। देन व्हेन द स्कूल विल रीओपन वी विल हैव सो मेनी एक्टिविटीज, राइट। फिर है बड़े बच्चों के लिए है 8th, 9th, 10th वगैरह के, गवर्नमेंट जॉब बेटर देन प्राइवेट जॉब्स। क्या गवर्नमेंट जॉब्स बेटर है, तो कोई प्राइवेट जॉब के बारे में बोलेगा, कोई गवर्नमेंट में, उसके फायदे बताएंगे, उसके नुकसान बताएंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। 3rd टॉपिक इज, शुड वुमेन गो आउट एंड वर्क, क्या औरतों को घर से बाहर जाके काम करना चाहिए। अब ये छोटे बच्चे 4th, 5th, 6th, और ऑफ कोर्स ऑल द चिल्ड्रन, नाउ it's very personal views, it's very personal topic, so you have to tell us कि आपको क्या लगता है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ जाना ही चाहिए, but when women go out, so their household chores and their members, they are sometimes neglected also। तो आप उसके बारे में अच्छा सा डिस्कस करना है। एंड चिल्ड्रन, इट इज नॉट अ डिबेट, जीडी इज नॉट अ डिबेट कि आपने सिर्फ फॉर में ही बोलना है, सिर्फ नेगेटिव बोलना है। जीडी इज ग्रुप डिस्कशन, आप वार्तालाप कर रहे हैं एक ग्रुप में बैठ के, इसलिए इसको स्ट्रांगली नहीं लेना है, जस्ट फायदे बुराई और ये सोचते हैं वो सोचते हैं, किसी की बात के आगे जोड़ना, इट इज नॉट डिबेट, इट इज जीडी, राइट। शुड वुमेन गो आउट एंड वर्क। और लास्ट वाला है, विच इज मोर यूजफुल, इंग्लिश और हिंदी, विच इज मोर यूजफुल, इंग्लिश और हिंदी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप इंग्लिश हिंदी इसको तो पूरे परिवार के साथ बैठ के कर सकते हैं, है ना। तो आप इंग्लिश के बारे में बोलिए, अपने फैमिली को कहिए वो हिंदी के बारे में बोले। तो जीडी है, आप कोशिश तो करिए 90% की इंग्लिश में ही हो, पर अगर 10% आपके पेरेंट्स चाहते हैं तो यू कैन सेंड इट इन हिंदी टू। Practice group discussion and send your videos to group in charges on 23rd। एक वीडियो 23rd को भेज दीजिए, एक वीडियो 24th जून को भेज दीजिए, राइट चिल्ड्रन। सो दिस इज योर वर्क फॉर टुडे। You do it today, send it tomorrow, then you do it tomorrow and send it on 24th. So on 24th, no, on 25th you will get another video of interview. That also I will tell you how to conduct interviews, mock interviews and survey of successful people. तो आप उसको भी अपने माइंड में रखिए। अब आपने सर्वे करना है सक्सेसफुल पीपल का, वो आपके फादर हो सकते हैं। नाउ अगेन द वीडियोज विल बी आर ऑफ दैट सॉर्ट दैट यू हैव टू डू इट एंड सेंड योर वीडियोज। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग और करने वाला काम आ गया है, लर्न से। लर्निंग नहीं करना, यू हैव टू प्रैक्टिस। तो अब ज़रूर आप जितने ज़्यादा हो सके वीडियोज़ भेजिए। दिस वीक you have to send your videos more and more, and children, very soon we are conducting an award ceremony also online। बहुत बढ़िया award ceremony करेंगे हम, in which you all will be invited with your parents and with your house members and with your extended family। तो सब invited होंगे, so that also we are planning। So this is all children, so do your work
Send your GD videos on 23rd and 24th, 1 top 4 में से 1 2 days. Okay, and you can send more also. God bless you. Have a nice day.